ہے سارے مہینوں سے، ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان۔ جی ناظرین اکرام، پیش خدمت ہے خصوصی تقریری مقابلہ ایک سے بڑھ کر ایک۔ جی ناظرین کرام، آخری سیمی فائنل راؤنڈ بچے بچیوں کے تقریری مقابلے کا، اور اس کے بعد ان کا فائنل راؤنڈ ہوگا 26 رمضان مبارک کو، اور کل سے شروع ہوگا انٹر یونیورسٹی سپیچ کمپٹیشن، اور بڑے بچے بچیاں انشاءاللہ ہوں گے آمنے سامنے میدان مقابلہ تقریر میں کھڑے۔ ابھی ہمارے پاس 3 کنٹیسٹنٹ جو آخری 3 سیمی فائنلسٹ ہیں، جن میں سے ایک کنٹیسٹنٹ جو ہمارا لاسٹ فائنلسٹ بننے جا رہا یا جا رہی ہے، ان میں کنٹیسٹنٹ اے سعیم احمد ناصرہ پبلک سکول سے، کنٹیسٹنٹ بی فبیہہ فاطمہ ڈویژن سکول سے، کنٹیسٹنٹ سی علیزہ عروج اکبر پبلک سکول سے۔ آپ تینوں کو میں ویلکم کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ ضرور پوری محنت کے ساتھ، پوری تیاری کے ساتھ آج کی تقریر پیش کریں گے، اور یقیناً آج میری نظر میں آپ تینوں ونر ہیں، کیونکہ یہاں آ گئے تو بس آپ ون کر گئے یہ مقابلہ۔ اور بتاتا چلوں کہ ہمارا آج کا جو تقریری موضوع ہے جو ان بچے بچیوں کو دیا گیا ہے وہ ہے ہماری آزادی۔ جی، اور گفٹ کٹیسیز آپ دیکھ رہے ہیں جو بیک ڈراپ پہ میرے نظر آ رہی ہیں، عابد گارمنٹس، جی ایف ایس بلڈرز، پیزا پوائنٹ، فوڈ بستی، ہمانی، پاپولر گروپ، کیو این این اور ریف لینڈ شوز والے، مرحبا سیلانی، ان سب کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمارے سے تعاون کیا۔ جی نام لے چکا ہوں، سنیے بھی ساتھ ساتھ۔ اور کیش پرائزز جو ہے وہ محترم مقام جناب سہیل شمس صاحب کی جانب سے ان کے جو فائنلسٹ ہوں گے، جن کا فائنل راؤنڈ ہوگا، انشاءاللہ ان کو ملیں گے۔ آپ تمام ہی کا بہت شکریہ، آپ ضرور 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 مجھے جو ہے وہ ایڈیشنل چیزیں بتا دیا کریں، تاکہ اگر میں بھول جاؤں تو مجھے یاد رہے، بڑی مہربانی۔ چلیں، 3 کنٹیسٹنٹس ہمارے ساتھ، 3 چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں، اور ان کے سامنے 3 بڑی بڑی شخصیات، مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب، بھائی محمد رضوان زیدی صاحب۔ آپ تینوں کا شکریہ کہ آپ سرپرستی فرما رہے، اسپیشلی مفتی صاحب کا بہت شکریہ کہ آج آپ نے وقت دیا اس مقابلے کو بھی، اور یقیناً آپ کے سامنے بچے بچیاں ہمارے مستقبل کا معمار جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو بہت لطف آئے گا۔ اجازت ہے حضرت، میں آغاز کروں؟ ڈاکٹر صاحب، رضوان بھائی اجازت۔ جی، کنٹیسٹنٹ اے تھرڈ اینڈ لاسٹ سیمی فائنل راؤنڈ کے فرسٹ کنٹیسٹنٹ سعیم احمد ناصرہ پبلک سکول سے، موضوع ہے ہماری آزادی۔ جی بیٹا تیار ہیں؟ ہاں جی، میں کر دیتا ہوں، رکیے، ہو گیا؟ چلیں، آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے، 1 2 3 سٹارٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر گرامی السلام علیکم۔ رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس مہینے مسلمانان ہند نے غاصبوں اور جابروں سے آزادی حاصل کی۔ اسی مہینے مسلمانان ہند نے مملکت پاکستان حاصل کیا۔ اس کے حصول کے لیے ہمارے بزرگوں نے بڑی عظیم قربانیاں دے کر یہ ملک ہمارے حوالے کیا۔ یہ خوبصورت ملک ہمیں بھیک میں نہیں ملا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک عطیہ اور انعام ہے۔ ہمارا ملک 2 قومی نظریے کی بنیاد ہے۔ 2 قومی نظریہ کیا ہے؟ وہ ہے ہندو اور مسلمان، 2 الگ الگ قوم ہے۔ جب ہندوستان میں مسلم قومیت کا نعرہ لگایا گیا تو سب مسلمان ایک جدا گانا قوم بن گئے۔ جب ایک قوم بن گئے تو ایک ملک بن گیا، جب ایک ملک بن گیا تو ایک جھنڈا بن گیا، جب ایک جھنڈا بن گیا تو اس پہ چاند ستارہ بن گیا، اور 27 رمضان المبارک کو پاکستان وجود میں آ گیا۔ صدر علی وقار، جب ہندوستان میں پہلا شخص مسلمان ہوا تو اسی دن یہ اعلان کر دیا گیا تھا، اسی دن پاکستان کی بنیاد رکھ دی گئی تھی، اور مسلمانان ہند نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کی خاطر ہندوؤں اور انگریزوں کی غلامی کا طوق اتار پھینکا تھا۔ اور ہمارے بزرگوں نے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور قانون رسالت کیا ہوگا، محمد الرسول اللہ کا نعرہ لگایا، اور دنیا کو یہ بتا دیا کہ اے دنیا والو، ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے علاوہ
हर एक की अतात से बेजार है। अतिउल्लाह व अतिउर रसूल उनकी जिंदगी का पहला उसूल है और रिसालत के दामन में समाज की निजात है। इस नजरिए और उसूल को मनवाने के लिए बर्रे सगीर के मुसलमानों ने जो कुर्बानियां दी उसकी तफसील के लिए तारीख आजिज है। खुदा जाने कितनों के बच्चे बिछड़ गए, कितनों के घर लुट गए, कितनों की गर्दनें कट गई, बेहदो बेहिसाब कुर्बानियां दी गई, महज इसलिए कि मुसलमान ये समझते थे कि पाकिस्तान के सब्ज परचम के साए तले उन्हें अमन और सुकून का जीना मिल जाएगा, वो मुल्क मिल जाएगा जिसमें बदमाशियां और बुराइयां ना होंगी। बकौल इकबाल, बंदगी में घुट के रह जाती है एक जुए कमाब और आज़ादी पे पहरे बेकरार है जिंदगी। शुक्रिया जी साईं अहमद, आपकी तकरीर बहुत अच्छी। मौजू हमारी आज़ादी और कमो बेश 11 सेकंड इनकी तकरीर अपने वक्त से आगे बढ़ गई है। कंटेस्टेंट बी हैं फबीहा फातिमा डिवीजन स्कूल से। आइए बेटा, और इनका भी तकरीरी मौजू जो है वो हमारी आज़ादी है। देखते हैं कि फबीहा आज हमारी आज़ादी पर कैसी तकरीर कर पाती हैं। जी फबीहा आइए, ठीक है माइक चलें। 3, 2, 1 स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज़ादी, आज़ादी, हमारी आज़ादी। किस बात से आज़ादी? क्या इस्लामी तालीमात से आज़ादी, या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से आज़ादी, सहाबा इकराम और औलिया इकराम की तकरीम से आज़ादी, या सियासत में आवाम की खिदमत से आज़ादी, दफ्तर में काम से आज़ादी, या गुंडों और बदमाशों को कानून से आज़ादी? अरे मुल्क के शहरियों की इज्जत और माल लूटने की आज़ादी, या इखलाक बर्बाद करने की आज़ादी, शराफत को गिराने और शरारत को उठाने की आज़ादी, या हया को दफनाने और बेहयाई को नचाने की आज़ादी? अरे आया तो है मगर ये अधूरा है इनकलाब। इंसान की खुदी तो दबी की दबी रही, हासिल यही हुआ कि आका बदल गए, आज़ादी अवाम नसीबों जली रही। सदर अली वकार हमारे इस्लाफ ने माह रमज़ानुल मुबारक में ये आज़ादी इसलिए हासिल की थी कि इंसानियत को नई रूह बख्शेंगे, खूंखारों को गमखार बनाएंगे, गुलामों को ताजदार बनाएंगे, मजलूम औरतों को अम्वाल का वारिस बनाएंगे, यतीमों को सहारा देंगे, बेवाओं को आसरा देंगे, भटके हुए को रास्ता देंगे। आज़ादी का जो ख्वाब देखा था अवाम ने, आज़ादी का जो ख्वाब देखा था अवाम ने, ए क़यादत आज तू उस ख्वाब की ताबीर देख। सदर ग्रामी, आज़ादी पाकिस्तान के बाद क्या हुआ? यह हमारी तारीख का वो शर्मनाक बाब है जिसका जिक्र करते हुए हमारे सर निदामत से झुक जाते हैं। हमने वो तमाम वादे यकसर फरामोश किए जो हमने हाजिर और नाजिर जानकर खालिके खुदा से किए थे। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह माजी के कब्रिस्तान में दफन हो गया। इसकी जगह इक्तिदार के भूखे इक्तिदार पर टूट पड़े। लूट खसूट, अकरबा परवरी, खुद नवाजी और खुदगरी के वो होलनाक मनासिर देखने में आए कि शराफत ने अपना सर पीट लिया। क्या यही आज़ादी है? क्या इसी का नाम आज़ादी है? क्या आज़ादी के यही जौहर हैं? क्या ईमान इसी को कहते हैं? क्या जिंदा कौमों के यही लक्षण हैं? जोग्राफिया ज़मीन का बिलाशक बदल गया, जोग्राफिया ज़मीन का बिलाशक बदल गया, तहजीब के निज़ाम की सूरत वही रही। शुक्रिया जी फबीहा फातिमा डिवीजन स्कूल से। और 4 से 5 सेकंड ये भी अपनी तकरीर 4 सेकंड अपनी तकरीर से आगे बढ़ी। तकरीर बहुत अच्छी की फबीहा ने और साइम ने भी, लेकिन देखते हैं कि अलीज़ा उरूज आज कैसी तकरीर कर पाती हैं। कंटेस्टेंट सी अकबर पब्लिक स्कूल, अलीज़ा उरूज। आइए बेटा अलीज़ा, आइए, ठीक है माइक। 3, 2, 1 स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शीरी दहन है नूरे सुबह नूर का परवरदा, आज मौज़ूए सुखन है सुबह नूर का परवरदा। सदर अली वकार, आज़ादी फ़र्द वाहिद से हासिल नहीं होती बल्कि आज़ादी जज्बे और वलवले से हासिल होती है। आज़ादी नज़्म ज़ब्त और इत्तेहाद से हासिल होती है। आज़ादी दरिया के पानी से नहीं बल्कि उस खून से हासिल होती है जो शहीदों के सीनों से निकलता है। मिल्लत की आबरू उस प्याले में झलकती है जिसमें आज़ादी के मतवालों का खून भरा हुआ होता है।
सदर अली वकार, मुसलमान जिसका ज़मीर ही जब्बारी व क़हारी और कुद्दूसी व जबरूत से उठता है, तो फिर वो किसी का ग़ुलाम कैसे बन सकता है? जो अल्लाह का ग़ुलाम हो वो अल्लाह के दुश्मनों की ग़ुलामी का तौक़ कैसे पहन सकता है? सदर अली वकार, ज़मीन व आसमान की हर शय जिसके तसर्रुफ़ में दे दी गई हो, वो अपने तसर्रुफ़ात से क्यों कर बेनियाज हो सकता है? अलबत्ता जब वो अपने मनसब दलीला से नीचे उतर आए तो फिर उसे कोई ग़ुलामी का तौक़ पहना दे, तब भी वो मुतमईन होकर नहीं बैठता। वो उन जंजीरों को तोड़ देता है जो उसकी गुलामी को सरफराज होने में दखल देती हैं। सदर अली वकार, जब हम आज़ादी की बात करते हैं तो इस मौके पर असलाफ के ज़ख्मों की बहार दिखाकर अपने फ़राइज़ से सुबुकदोश हो जाते हैं कि हम ये जानते हैं कि आज़ादी के तकाज़े क्या हैं, क्या हमने ये जद्दोजहद वतन हासिल किया मगर हमारी खुदगर्जी, मज़हब और नज़रिए की बेगानगी के बाइस इसकी बका ख़तरे में पड़ती जा रही है। हर तरफ जहालत सूरज की शुआओं को गिरफ्तार कर रहा है। सदर अली वकार, कायदे आज़म की रूह हमसे अहद मांग रही है और शहीदों का लहू हमें पुकार रहा है कि उठो और नए जोश और वलवले के साथ फ़िरका बंदी के सनम खाने को गिरा कर इत्तेहाद का काबा तामीर कर दो। कि उठो और इत्तेहाद, ईमान और तंजीम का नारा बुलंद करके मिल्ली यकजहती के फूल खिला दो। आखिर में बस इतना, ये फितना व फिसाद के परवरदा तखरीब का सामा लाख करें, हम बज़म सजाने आए हैं, हम बज़म सजा कर दम लेंगे। ये सब ज़िलाली परचम है, हर हाल में ये लहराएगा, ये नगमा है आज़ादी का, दुनिया को सुना कर दम लेंगे। ये नगमा है आज़ादी का, दुनिया को सुना कर दम लेंगे। वमा अलैना वइल्लल बलागुल मुबीन। टेस्टेंसी अलीज़ा उरूज अकबर पब्लिक स्कूल से अपने वक्त में इन्होंने अपनी तकरीर को समेट लिया। क्या शेर था बेटा? वो फितना हो, हाँ वो फिसाद हो गया आपसे, और परवरदा अगर होता तो ज़्यादा बेहतर था, लेकिन चलें परवरदा तो क़िबला। मैं हमारे जजेज़ इंशाल्लाह सही इस पे निशानदेही करेंगे। मैं शेर सुनता हूँ तो शेर के हवाले से ज़ाहिर ज़रा एक्टिव हो जाता हूँ। तो जी मुफ्ती मोहम्मद सैयद अब कैसा पाया तीनों को? आज आपने बच्चे हैं मगर देखें, वो जैसे कहते हैं ना कि एक से बढ़कर एक, माशाअल्लाह वही सूरत है वाकई आज मुझे नजर आया माशाअल्लाह। इस बच्चे ने तकरीर की तो मैंने कहा अब कोई मजीद मजा नहीं आएगा। हाँ, कोई नहीं इससे आगे बढ़ पाएगा, और इससे आगे कोई नहीं बढ़ पाएगा। बड़ी बेहतरीन तकरीर की, लेकिन ये जो दरमियानी बच्ची है इससे तो कमाल कर दिया माशाअल्लाह। ये छोटी सी बच्ची है, लेकिन इसने, वो कहते हैं ना, मैं छोटी सी एक बच्ची ऊपर काम करूंगी बड़े पहले भी एक बड़ा कर चुकी है, दूसरा बड़ा काम। इसकी जितनी तारीफ करूंगा मैं माशाअल्लाह। बाकी उस बच्ची ने भी बहुत अच्छी की है माशाअल्लाह। लेकिन इम्तिहान है, मुकाबला है, किसी आगे बढ़ता है, कोई आगे बढ़ने के इंतजार में फिर मेहनत करता है मजीद। बिल्कुल ऐसा। तो माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगा। इनको दुआ देने हो साहब, आपकी दुआओं से अल्लाह ताला बेटा सबको बहुत ऊपर ले जाए, तरक्की अता फरमाए, इज्जत अता फरमाए। बिल्कुल। और ये तो एक इम्तिहान है ना, आगे जाकर आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन इस फील्ड में बहुत आगे ले जाए इंशाअल्लाह। जी प्रोफेसर साहब, बस मेरे दिल की तर्जुमानी तो उन्होंने कर दी है, अब क्या है, सीधी सी बात है। बहुत प्यारे बच्चे हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छे हैं। रोज़ाना मैं गलतियां निकालता हूं, कोशिश करता हूं कि इस्लाह की तरफ, लेकिन आज मामलात बड़े अच्छे हैं। जी जी। लेकिन वही आपने बकिया वो फितना फसाद हुआ है, फिसाद और फसाद कह दिया। लेकिन एक बात यह है कि बेटा, मैं किसी तरफ पॉइंट आउट नहीं करूँगा, दिल बर्दाश्ता होते हैं लोग, लेकिन जब आप तकरीर करते हैं तो ये महसूस नहीं होना चाहिए कि कोई रटी हुई बात आप याद करके और बोलना चाह रहे हैं। सही। तो ज़रा सा लहजा ऐसा हो जो फितरी लहजा हो, और नतीजा तो बहरहाल जो आएगा सो आएगा। लेकिन यह है कि माशाल्लाह बच्चे ने बहुत अच्छी तकरीर की है, और इस बच्ची ने तो जो है वो अंदाज़ ख़तीबाना रखा। सही। और उस अंदाज़ का फ़ायदा यकीनन पहुँचता है इंसान। बिल्कुल सही बात है। जी जनाब रिजवान ज़ैदी साहब। बिल्कुल मजमूई तौर पर जैसे जो सेमीफाइनल होना चाहिए वैसा ही सेमीफाइनल हुआ, और तीनों बच्चे माशाल्लाह बहुत अच्छे। बेटा झंडे और परचम का एक सिर्फ छोटा सा फ़र्क है, जब हम मिल्लत की बात करें तो परचम उसके साथ ज़्यादा मुनासिब लगता है, झंडे पर एतराज़ नहीं है। सही। लेकिन परचम ज़्यादा मुनासिब लगता है। सही। और फिर ख्वाब है, जिक्र है, रिजवान थोड़ा सा माइक करीब कर लें। जी जी। अच्छा, ख्वाब है, जिक्र है, दफन है, बज़्म है, तो इस चीज़ का ख्याल करें। बहरहाल आप लोग सीख रहे हैं, इस उम्र में निशानदेही हो रही है, बहुत अच्छी बात है, और तीनों ने बहुत अच्छी तकरीर की। लेकिन जो मुश्तरका जो टोटल जो है वो, और उस हिसाब से मुश्तरका और मुत्तफ़िक़ा जो फैसला है उसमें फ़बीहा जो है वो, फ़बीहा फातिमा डिवीजन स्कूल से लास्ट सेमीफाइनल राउंड की लास्ट फाइनलिस्ट सेलेक्ट हो गई हैं। फ़बीहा, बहुत मुबारक हो। इधर आ जाए ना आप जैसी छोटी सी गुड़िया है तो बात इधर आ जाए। फ़बीहा फातिमा ये है वो बच्ची जो हमारी अगली और आखिरी फाइनलिस्ट बन गई हैं। फ़बीहा बहुत बहुत मुबारक हो आपको। ठीक है,
अगली दफ़ा आना है तो मिठाई भी लेके आनी, फाइनल बन गए आप। चलें बैठ जाएं। और अलीज़ा आपके लिए भी देखें, अलीज़ा बहुत अच्छी प्यारी बच्ची है मेरी, इसलिए मुस्कुरा रही है। और साइम आप भी मुस्कुरा के दिखा दें, ये हुई ना इतना प्यारा मुस्कुराते हैं माशाल्लाह। तीनों बच्चे बच्चियां, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत अच्छी तकरीर की है और बहुत अच्छे, इनको जाहिर है कोई हरान नहीं पाया तभी तो ये तीनों यहाँ तक आए, लेकिन कोई बात नहीं, आप तीनों मेरी नज़र में विनर है। बताता चलूँ कि हमारे साथ ताउन किया है फूड बस्ती वालों ने, GFS बिल्डर्स वालों ने, ताउन से मुराद ये है कि गिफ्ट हैम्पर्स वगैरह, और पिज़्ज़ा पॉइंट वालों ने, आबिद गारमेंट्स वालों ने, हिमानी, पॉपुलर स्टाइल, QNN, रीफ्लैंड शूज़ वालों ने, इन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। सुहेल शम्स आपकी जानिब से कैश प्राइजेज़ हैं जो फाइनल राउंड में इंशाल्लाह फाइनलिस्ट जो बच्चे होंगे उनको मिलेंगे। आप तीनों हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर दिल से कि आप लोग यहाँ हैं और सरपरस्ती फरमा रहे। कल से होगा आगाज़ इंटर यूनिवर्सिटी डिबेट कंपटीशन का। कल होगी आपसे मुलाकात बड़े बच्चे बच्चियों के दरमियान पहले सिलेक्शन राउंड में। अभी इजाज़त दीजिए, वक्फे के बाद इंशाल्लाह मिदत मुस्तफ़ा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में फ़ज़ाइल मनक़बत का दरिया में बंद कूज़े में कर रहा हूँ, रसूल आखिर की मदह क्या हो, मैं आब छन्नी में भर रहा हूँ। वक्फे के बाद होती है मुलाकात। है मोमिनों के दिल का उजाला शाने रमज़ान, है मोमिनों के दिल का उजाला शाने रमज़ान, है सारे महीनों से शाने रमज़ान, है सारे महीनों से निराला। नाज़रीन, अगर आप ऐसी ही मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारा ARYQ TV का चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाना न भूलिए ताकि आपसे कोई पसंदीदा प्रोग्राम मिस ना हो जाए।